produce a product, mean he will collect some samples of the product, sells and market the product. He will sell it in an online way, in an offline way, and market into the product. He will start marketing that particular product. Okay. And then we were overhead like that. They pay rent of the lands and buildings. Mean where you start your small business, you must firstly start business by taking a some shop on rent. Okay, like that, and building. And you are liable to pay wages to the laborers. Mean if you are entrepreneur, you will pay your worker, your labor who are working under you. Okay, interest on the capitals later generate the profits, and after that you will generate, after processing everything, you will generate a profit so that you can earn something from that particular product. Okay. Now working definition of entrepreneur. वर्किंग डेफिनेशन ऑफ सिंपल वे में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे. फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर, एंटरप्रेन्योर ए पर्सन हु कंबाइन वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लाइक इट प्रोसेस द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या है? इफ यू आर मेकिंग समथिंग, सम प्रोडक्ट, यू फर्स्टली कलेक्ट द रॉ मटेरियल. सपोज यू आर मेकिंग ए स्मार्टफोन, तो फर्स्टली यू कलेक्ट रॉ मटेरियल ऑफ द स्मार्टफोन. फ्रॉम इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ स्मार्टफोन कितने टाइप, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके, बैटरी है, ठीक है जी, उसमें चिप्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर, स्मॉल आईसीज हैं. यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग द रॉ मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. यू सेट अप योर बिल्डिंग ऑफिस वेयर यू फिनिश द प्रोडक्ट्स. मीन you have to make it a final product. Final product mean if you are making a smartphone, तो स्मार्टफोन ये तो है नहीं आपने बैटरी सेपरेट दे दी, आपने उसका स्क्रीन सेपरेट दे दी, ऐसे तो नहीं है ना. You have to give them a finishing. तो finish that particular products and create utility and sell the that you have produced. Sell the product जो आपने अभी बनाया. You have to sell it by various method. Like if you are making smartphone, you will sell it online, you will sell it offline. You can sell it in a national level, you can sell it in an international level. If you start making the product, or simple to do the profit. What we are here for the profit. If you are entrepreneur, you must have a profit at the end. ये नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, you will in the loss. ऐसा नहीं, हमने एंटरप्रेन्योर बनना है, हमने एट द एंड वी हैव सम प्रॉफिट. तो सिंपल डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योर्स आर मेड बट नॉट बोर्न. कोई भी बिजनेस बोर्न नहीं होता, उसको बनाया जाता है. एंटरप्रेन्योर बनना है हमने, हम बोर्न नहीं है. ठीक है. This is the basic flow chart of an entrepreneur. Entrepreneur have following फैक्टर्स, जिसको हम इसकी मैथ्स भी बोल सकते हैं, हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं. एंटरप्रेन्योर इज ए ऑर्गेनाइजर. फर्स्ट इसका जो हम यहाँ से लेते हैं फ्लो चार्ट से, ही और शी विल बी ए ऑर्गेनाइजर. मीन इफ यू आर मेकिंग समथिंग, सम स्मॉल बिजनेस, यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर बिजनेस, स्टार्टिंग फ्रॉम taking the raw material to selling and getting the profit. Everything you have to manage. Okay. And innovators mean firstly you think what you are going to make. तो ये नहीं है कि मैं स्मार्ट, I have given the example of smartphone. It doesn't mean कि आप smartphones manufacture करना start कर दो, because there are a lot of companies who are making a smartphone. So you must have an idea which is new to the market. ठीक है. That's why entrepreneurs are innovator. A change agent mean you must produce such product which get change in the market. कि आपने अगर स्मार्टफोन भी बनाना है तो you must have some special qualities, special features in the smartphone so that it will change the market. Similar way like Redmi, Oppo. ठीक है. Oppo ने क्या किया, कैमरा फीचर अच्छे दे दिए, तो Redmi डाउन हो गया. Samsung पहले था, Redmi आया, फिर Oppo आ गया. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट जो स्मार्टफोन क्या कौन सा आ रहा है, जो आ चुका मार्केट में,
OnePlus, ठीक है, they have everything good, battery backup, camera and processing speeds, everything good. Mean you must have, if you are launching some product, there must be a change in the market. A entrepreneur is a risk taker. This is the very good things about the entrepreneur. You must have a capacity to take a risk. ये आपको पता होना चाहिए कि हम स्टार्ट ओपनिंग सम बिजनेस, इसमें रिस्क भी रहेगा लॉसेस का. ओपनिंग करने के बाद विद इन 15 डे बंद होने का रिस्क भी रहेगा. यू स्टार्टिंग न्यू कंपनी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी 100% प्रॉफिट देगी, उसका रिस्क रहेगा बंद होने का. यू मस्ट हैव अ रिस्क टेकर. तो रिस्क टेकर भी होना, ये भी एंटरप्रेन्योर की एक यहाँ पे है. क्रिएटर ऑफ न्यू सिस्टम. If you are doing something new in the market, you must have created for making a new system. Okay, these are the some points that are involved in the entrepreneurship. Now these are some factors that are involved, that are key elements of entrepreneurship. First is innovation, that we have already discussed. You must have some brilliant idea, successful idea that you put in the market and you will get a 100% profit. Okay, innovations, ये आपको पहले आपको ये सोचनी पड़ेगी. What we are going to launch, what we are going to suppose to start some business at the starting point. Second, risk taking. That we have already discussed. First of all, you have a capacity to take a risk. If you are putting some money on that, having some products, then you must take a risk. Vision, that is a very main important point about the entrepreneur. Vision. Vision क्या होता है? कि what is the value, what is the profits at the end, and after 5 years where we look our company. हम कहाँ देखते हैं कि हमारी कंपनी या हमारा स्मॉल बिजनेस कहाँ तक जाएगा. ठीक है, अगर हमारे पास विजन है, we have a vision, then we can easily achieve it. Okay, first of all we have to look into the innovations and then go to the dreams and take that dream into the visions, convert that dream into the vision. एक ड्रीम एक सेपरेट थिंग्स होती है, विजन एक सेपरेट थिंग है. ठीक है जी. ऑर्गेनाइजिंग स्किल. Organizing skill is the most important factor whenever you become an entrepreneur. वो कैसे? So you start small business like selling some clothes. If you are selling some clothes, you take the raw material from some factory. Okay, but you must have to organize things. आपको पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल मैंने कब ले आना, और विंटर में कौन सी क्लॉथिंग होगी, समर में कौन सी क्लॉथिंग होगी. ठीक है, इन बिटवीन कौन सी क्लॉथिंग, कौन से क्लोथ्स प्रेफर करेंगे यूथ, कौन से क्लोथ प्रेफर करेंगे ओल्ड एज, टीनेजर कौन से क्लोथ प्रेफर करेंगे. यू मस्ट बी हैविंग ए ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स. आपने देखा होगा, आप एक ही शॉप पे जाते हो शॉपिंग करने के लिए, जो आपकी फेवरेट नहीं होती. बेसिकली द शॉपकीपर हैव ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स. उसको पता है आप क्या लाइक कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है. ही इज कीन ऑब्जर्वर ऑफ डूइंग टू स्टडी योर ब्रेन. ठीक है जी. जो मार्केट में शॉपकीपर ऐसे ऑर्गेनाइजिंग इसमें स्किल्स नहीं है, यू डोंट हैव एन ऑर्गेनाइजिंग स्किल, वो उनकी शॉप जो फेलियर हो जाती है. उसका रीजन यही है, एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव ए ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स. ओके, दिस इज द मेजर पॉइंट अबाउट दैट. ये सभी उसमें यही बताया उन्होंने, हाउ टू मेक ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स. आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक आपको पता होना चाहिए हाउ टू ऑर्गेनाइज इट. ठीक है जी. फर्स्ट स्टेप क्या है? सपोज यू हैव रन ए बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, क्लोथिंग जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, तो आपको पहले पता होना चाहिए मैंने कहाँ से क्लोथ रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, तब आपने इसको ओपन करनी है, ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर्ली. ओके जी. दिस इज अनदर थिंग. Good afternoon, students. I am Dalveer Singh, assistant professor student Bachelor. Basically ये जो वर्कशॉप है एंटरप्रेन्योरशिप पे है, ये हमारे जो IISc है उसके क्लब के तरफ से है.
जो IIC क्लब है ये बेसिकली गवर्नमेंट बॉडी में चलाया हुआ है, एक इंस्टीट्यूशंस के लिए क्लब है। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, जो टीचर है, वो अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। कोई बिजनेस आइडिया उनके पास है, या फिर कोई वो इनोवेशन करना चाहता है बट उसको एक राइट स्टेप नहीं मिल पा रहा है, करे कैसे। आइडिया तो है बट आगे क्या जर्नी नहीं पता। तो उसके लिए ये क्या गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प करने के लिए क्लब बनाया हुआ है, जो गवर्नमेंट गवर्न करती है। इसमें क्या होता है, आपका अगर बिजनेस मॉडल है वो भी सबमिट कर सकते हो, अगर कोई आइडिया है वो भी आप हमारे पास आके सबमिट कर सकते हो। आप किसी टाइम भी हमारे पास बैठ के अपना आइडिया सुना के उस पर वर्क करके हमें बता सकते हो। जो आपके सीनियर्स थे, बस इतने